All right, everybody. My name is Amar Jaju, and I welcome to India Fights Addiction, which is an initiative by Nation Next Foundation with an intention to help people with addiction to come over the addiction, and also share life stories of people who have had some addiction of sort in the past. Today, on the occasion of World No Tobacco Day on May 31st, we have with us two former smokers who have smoked for long, and they were able to come out of this habit of theirs by their strong will, by other kind of methods that they adopted. I would like to introduce all of you to our first guest today. We have with us Nagpur-based chartered accountant Pranav Kumar Limuja. He's a chartered accountant based out of Nagpur, and we have with us screenwriter Srijan Dubey. He's based out of Mumbai with us. Both of them ex-smokers. So we'll start with our program, viewers, and I would be very happy to tell you that even I am an ex-smoker. So this program is completely by the ex-smokers, for the ex-smokers, and for all those people who are willing to quit, who are looking forward to quit smoking. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सबसे पहले सृजन से बात करते हैं. सृजन, सबसे पहले मुझे बताइए कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू स्टॉप स्मोकिंग, एंड हाउ लॉन्ग डिड यू स्मोक, और आपका मतलब हाउ मच वुड यू स्मोक अ डे, एंड हाउ लॉन्ग इज इट दैट यू हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग नाउ? तो मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ. आई थिंक कॉलेज में अराउंड 11th स्टैंडर्ड में 11th-12th के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था स्मोक करना. And at that point, it only used to be maybe 1 stick a day, 2 stick a day. And a lot of it had to do with the peer pressure से ज़्यादा. It's more like it's cool among your peers. लोग कर रहे हैं, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, you try it. And शुरू में it's very difficult to do it in the beginning. You get that kick and you feel dizzy और ये. But then I got into an engineering college और वहाँ पे तो खैर बढ़ता ही गया. And then when I was working elsewhere, ये वो तो कुल मिला के around for I think 8 or 9 years I was smoking, and for around 6 or 7 of those years दिन के 7-8 हो जाते थे in a normal work day. और अगर friends के साथ बाहर हूँ, if you are drinking or something like that is happening, then maybe a pack easily हो जाता था. So that used to happen for the longest time. और बीच में 1-2 बार मैंने quit किया because I was aware of the ill effects of smoking. मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है. It was just that somewhere in my mind जो cost benefit analysis है, मेरे हिसाब से वो ये थी कि it's okay, I can deal with the circumstances. जो भी आगे होने वाली हैं वो शायद उतनी problematic नहीं होंगी, अभी के लिए ठीक है. Plus it is physically addictive, it is psychologically addictive, and you get addicted to the break, the idea of the break. कि यार चल मैंने आधे घंटे दिमाग लगा लिया, अब मुझे ब्रेक चाहिए. तो वो तो होता ही था इंजीनियरिंग में. you study for a bit and then you're like, okay, now I need a break. तो वैसे और वही चीज ऑफिस में होती थी. That used to happen. Then around I think 2.5 बीच में मैंने क्विट करने की 1-2 बार कोशिश की कोल्ड टर्की. बट कोल्ड टर्की गॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइक मैंने एप्स भी यूज की, सब किया, बट कोल्ड टर्की में क्या होता था कि इफ देयर आर अदर्स अराउंड यू, यू स्टिल क्रेव इट. एंड सब कहते थे कि विल पावर की बात है और सिर्फ विल पावर की बात है. बट I started reading about addiction, and addiction changes the neural pathways in your brain. तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है. Your physical structure of your brain is changing. That didn't work for me. 2-2.5 साल पहले क्या हुआ, I started working in a place where we used to work in a closed room as screenwriters. और जो हमारे head थे, he would not smoke. तो हम लोग थोड़ा लिख के ब्रेक पे जाते थे, बट थोड़ा ऑड लगता था उनके सामने बिकॉज ही इज एन एल्डर पर्सन. मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे अजीब लगता था जाना. उस टाइम पे वेप्स आए थे नए नए. आई थिंक एवरीवन हैड अ वेप एट दैट टाइम. तो आई ट्राइड वेपिंग आल्सो फॉर द निकोटीन एंड एवरीथिंग, बट वो भी मुझे उनके सामने ऑड लगता था. देन वन डे ही जस्ट नोटिस्ड कि मैं काफी
स्मोक नहीं मिलता है, यू फील वेरी एजिटेटेड। मैं Yeah, बहुत yeah. I am एजिटेटेड sure दिख we रहा all हूँ। can associate to it. All of us know what that feeling is, right? Yeah, yeah. So he said कि तुम एजिटेटेड दिख रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें सिगरेट पीनी है? मैंने कहा सर मतलब फीलिंग तो वही आ रही है, बट मैं यहाँ से उठ के नहीं जाना चाहता। तो ही सेड कि मैं भी स्मोकर था 20 साल तक, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सर कैसे छोड़ा आपने? ही सेड कि आई स्टार्टेड यूजिंग निकोटीन गम और उससे हो गया। तो आई सेड सर ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं गया, मैंने निकोटीन गम का एक पैक लिया एंड जैसा उसमें डायरेक्टेड था आई स्टार्टेड यूजिंग इट। शुरू में थोड़ा मुश्किल था बिकॉज आई रियलाइज्ड आई वाज आल्सो एडिक्टेड टू द साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ होल्डिंग समथिंग इन माय हैंड्स Yeah, yeah, and blowing that smoke, you yeah. know, and even that smell and everything. But एक दो हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि I stopped going out for cigarettes. Like मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ी because I think physically मेरी बॉडी तब तक रिकवर होना शुरू हो गई थी from the addiction. So I didn't feel the need. मुझे कभी लगता था कुछ होता था तो I would just chew a gum. और उनके सामने chewing gum did not feel odd at all. At all, yeah. Like even घर पे अगर आपकी एक फैमिली भी है, कोई है and you're just having chewing gum, no one will object to it saying कि यार ये chewing gum क्यों खा रहे हो तुम हमारे सामने. And later on I started noticing other benefits, so I stuck to it and I think अभी 2-2.5 So साल हो गए I हैं think having it. in your case, I think someone आपको कोई एक ऐसा आदमी मिला जो एक former smoker था and जी he helped बिल्कुल. you see things in a very better way for you. I think there are a couple of things that really triggered. I have spoken to a lot of non-smokers. किसी को motivation strike करता है, किसी को health strike करती है, किसी को कुछ और strike करता है. I think in your case it was motivation primarily. Yeah. प्रणव, आप बताइए आपका कैसे कितना addiction रहा? और I think Srijan, I would like to tell you, I've spoken to Pranav before. He had he used to have like 3 or 4 packets a day for a long Okay. period of time, and Okay. he was able to quit as well. तो प्रणव आप बताइए कि कितना आपने Great. टोबैको अब्यूज किया in terms of smoking और कितने सालों तक किया, और इतना हेवीली चेन स्मोकर ही कहेंगे क्या? 3 और 4 पैकेट्स को तो चेन स्मोकर ही कहेंगे. तो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट, और आपके लिए क्या वर्क किया उसमें से निकलने के लिए? बात ऐसी है, जब मैंने स्मोकिंग चालू किया था, सेम लाइक अ सृजन, कैसा था कि हम लोग ना चाय के एक टपरी पे जाके बैठते थे और दोस्त सिगरेट पी रहे हैं और कैसे मेरे पिताजी भी यूज्ड टू थे सिगरेट पीने में, तो मैं सिगरेट लेके आता था वगैरह. तो मेरे लिए ना थोड़ा सा एक अट्रैक्शन था कि सिगरेट पी के देखना चाहिए एंड हाउ उन्होंने कैसे पीते हैं, क्या है, ये सारी चीजें तो मेरे दिमाग में थी. लेकिन क्या हुआ, मेरे एक दोस्त था, वो सिगरेट पी रहा था और पीते वक्त में जो स्टाइल से पी रहा था कि वो सिगरेट थोड़ा सा पिएगा और धुआं बाहर निकलेगा वगैरह, तो मैंने उसको ना होशियारी दिखाने के चक्कर में मैं एडिक्टेड हो गया. तो हुआ है, मैंने उसको बोला ये सिगरेट ऐसे नहीं पी जाती है. फिर बोले देख भाई, तू कभी सिगरेट तो पिया नहीं और तू मेरे को क्यों बता रहा है? तो देख मैं पी के बताता हूँ. एंड दैट वाज माय फर्स्ट. मैंने अपने मुंह में सिगरेट लिया, 2-3 कश मारे, इतना सा भी धुआं बाहर नहीं निकला. एंड और फिर बाद में जब 5-7 मिनट के बाद में जब धुआं बाहर निकला, ढका रही और धुआं बाहर निकला, मुझे ऐसे लगा कि यार मस्त लग रहा है. एंड देयर आफ्टर जो चालू हुई, रोज 1 सिगरेट 2 सिगरेट 3 सिगरेट करते करते तकरीबन 1-1.5-2 महीने के बाद में मेरा एडिक्शन लेवल जो था वो तक 1 पैकेट तो मेरे जेब में रहता ही था मिनिमम. और फिर धीरे धीरे करते करते मैं तकरीबन 9 इयर्स पकड़ के चलिए, टोटल 9 साल मैंने सिगरेट पिया हूँ. तो वो लेवल ऐसी आ गई थी कि अगर मैं घर से निकलने के बाद में घर के बाजू में एक पान ठेला है, वहां पे जाके पहले 1 सिगरेट पीऊंगा, फिर उससे 1-आधा किलोमीटर आगे में एक पान ठेला, यानी सारी पान ठेले जो है वो मुझे देखते हुए पहचान लेते थे, हाँ प्रणव ये आ गए, ये सिगरेट देने को. तो वो निकल के वहां पे रहती थी, सिगरेट पीते थे. एंड हर आधे घंटे में 15-20 मिनट में पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार मुझे सिगरेट पीनी है. और अननोइंगली बोलो या फिर क्या, वो पता नहीं क्या था, लेकिन मैं वहां पे जाके बैठ जाता था और सिगरेट पीना चालू रहता था. नहीं अगर है, मुझे मालूम है आजू बाजू में पान ठेले नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं अपने पैकेट जेब में लेके रखता था. तो ये बढ़ते बढ़ते ना 3-3.5 पैकेट तक के चली गई. अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी अपने स्क्रीन राइटर ब्रदर भी कर सकते हैं, और हम लोग अगर नहीं करेंगे तो इट्स टू मच. तो वो हाँ मैं, लेकिन कैसा होता है वो मराठी में बोलते हैं ना, कळते पण वळत नाही.
हाँ। तो समझ में तो सारी बराबर। चीजें आ रही थी, यार हो तो गलत रहा है लेकिन चल रहा है एडिक्शन। साथ ही साथ में उसके साथ मैंने एक थोड़ा सा ये था, प्रैक्टिस डेवलपमेंट भी चालू था मेरा। तो प्रैक्टिस डेवलपमेंट के चक्कर में यानी मैं इन बिटवीन टैक्स प्रैक्टिशनर करके भी काम करता था। तो प्रैक्टिस बढ़ाना है तो पांठेले पे जाके बैठे थे, सिगरेट लिए और रोज एक सिगरेट पीते पीते एक लाइन बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी, जैसे कोई यूज ना करे तो अच्छी बात है ये। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है ना वो दिमाग में थी, और साथ ही साथ में उसके साथ में मैं चाय भी पीता था। ये जो कॉम्बिनेशन है इट वाज वेरी डेंजरस। तो एक कप चाय साथ में एक सिगरेट, तो ऐसा करते करते वो चाय भी बढ़ गई और उसके साइड इफेक्ट तो बहुत हेवी है, बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो सारी चीजें मेरे साथ में होती गई, मैं और एक टेंशन अलग से, बिकॉज सीए करने के लिए भी टाइम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैरिज भी हो गया था। जब मैंने सीए में एंट्री किया तभी मेरा मैरिज भी हो गया था। तो मैं सोचता था यार कमाई भी करनी है, ये भी करना है, और साथ ही साथ में इतना टेंशन के चक्कर में ना वो बिना कुछ ध्यान रहे सिगरेट की दुकान यानी पांठेले पे जाके बैठते थे और चालू रहता था। दोस्त भाई लोग रहते थे, और अच्छा ऐसी बुरी आदतों में इतने सारे दोस्त भाई लोग मिलते कि बताओ ही मत। तो ये सारी चीजें वहां से चलती गई, धीरे धीरे चलती गई। एंड वंस एक बार ऐसा हुआ, जैसे 2008 में मैंने एक बार ऐसे सोचा कि प्रणव भाई सिगरेट तो छोड़ना है यार, बिकॉज नाउ आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी सोच के रखा था कि ये टाइम तो अपना आखिरी है और अपने को छोड़ना है। तो छोड़ना है ये मैंने जिस दिन सोचा, लकीली उसी दिन मेरा एक दोस्त ना फिल्टर लेके आया था, सिगरेट पे फिल्टर लगा, और वो सिगरेट पी रहा था। तो बोले यार फिल्टर से क्या होता है? तो बोले मैं मैजिक दिखाता हूँ। उसने वो सिगरेट का फिल्टर निकाल के उसको अंदर से वो जो उसका ये रहता है कपास जैसे रहता है, वो बोले ऐसा हाथ लगा के देखो। ऐसे हाथ पे लगाया, हाथ पे लगाने के बाद में वो जो येलो कलर का ऐसा दाग गिरा, वो येलो कलर का दाग मेरा कम से कम 2 दिन तक के रहा। ठीक है, यानी चारकोल का दाग था वो। और उसके बाद में उसकी जो स्मेल थी ना, वो स्मेल मुझे एकदम से इरिटेट कर गई। बोला इतने सिगरेट पीता हूं मैं, लेकिन वो इतनी सी स्मेल इरिटेट कर गई, यानी मैंने अपने आप में अंदर में क्या करके रखा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं प्रणव, कुछ तो भी तो गड़बड़ हो रहा है। सो आई स्टार्टेड, मैंने फिर फिल्टर परचेस करना चालू किया और फिल्टर से सिगरेट पीता था, और वो जो कार्बन जमा होती थी उसको निकाल निकाल के देखता था कि कितना कार्बन मैंने आज लिया है। तो वैसे करते करते थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन एक चीज जो मुझे सिगरेट छोड़ने पे मजबूर की वो ये थी, मैं मुंबई गया था एक बार ट्रेन में, तो मुझे बर्थ अपर बर्थ मिली। एंड लकीली वो जो बोगी थी जहां पे मुझे अपर बर्थ मिली थी, वहां के जो बाकी 5 बर्थ थी वो पूरी की पूरी लेडीज ने ऑक्युपाई किया था। अब सिगरेट की तलब वो किसी से छूटती नहीं है, जेब में तो थी सिगरेट। अब तलब आई तो मैंने क्या किया, नीचे उतरा और मैं गया वॉशरूम गया। वहां पे जाने के बाद में सिगरेट पिया, वापस आया, और आने के बाद में मैं सोया था। एंड दैट लेडी शाउटेड कि कौन गंदा पर्सन है, कितनी गंदी बात आ रही है। यानी इतना जैसे कि मेरे को ऐसे लगा मैंने हजारों कत्ल कर लिए आज, इतना फीलिंग बेकार आया था मुझे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा ट्रिगर कर गई। और दूसरी एक चीज और थी जो मैं यानी दिमाग में आई थी कि मेरे बदन से ना ऐसी गंदी सी बांस आती थी, वो सिगरेट की जो बांस है। 30-35 सिगरेट पीना है, इट्स नॉट आई थिंक स्मोकर्स को वो रियलाइज नहीं होता, बट पीपल हु आर नॉट स्मोकर्स, आई मीन उनको बहुत जल्दी रियलाइज होता है कि योर हाँ, तो खतरनाक। तो वो जो स्मेल है, नहीं मुझे भी रियलाइज होना चालू हो गया था कि मेरे बदन से स्मोक यानी वो उसकी बांस आ रही है करके, वो मुझे भी रियलाइज होना चालू हो गया था। एंड वो मेरा माइंडसेट बनते जा रहा, नहीं यार छोड़ना है, छोड़ना है प्रणव, छोड़ना है। एक दिन मैंने सोचा कि आज नहीं पीऊंगा, लेकिन वो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। गया वहां पे, यानी यहाँ से ऑफिस गया, ऑफिस जाते वक्त में जो 5-6 पांठेले हैं उनको स्किप किया, लेकिन ऑफिस जाने के बाद में फिर सिगरेट पिया। यार नहीं रहना होता। बट फिर 2008 में जैसे सीए बना तो आई थॉट कि नहीं यार प्रणव, आज तो छोड़ देना चाहिए। जो मैंने एक डे 1 जो 35 सिगरेट्स वाला किस्सा था, वो डे 1 मैंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ दूंगा, आज से तो छोड़ दूंगा मैं। एंड आई क्विट दैट सिगरेट स्मोकिंग। मुझे याद है 11th ऑफ अगस्त 2008 मेरा प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आया, और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। सो उसके बाद में इफेक्ट्स है, तो तकरीबन 3 साल तक के मुझे याद है आई वॉज अ साइको पेशेंट। मुझे याद नहीं रहता था, कोई अगर सामने भी आता है, मेरा दोस्त जो बहुत गहरा दोस्त भी है मेरे सामने में आता था, उसका नाम नहीं आता था। वैसे लगता था इसको पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं आता। दैट वाज द सिचुएशन।
तो 2-3 साल मैंने बहुत बुरे निकाले हैं। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जैसे सृजन ने भी बोला, एक पीयर प्रेशर भी है, और एक आई थिंक आई रिमेम्बर व्हेन आई, कोई भी नॉन स्मोकर ये कभी नहीं भूल सकता कि उसने सिगरेट पी कब थी पहली बार और छोड़ी कब थी, तो दोनों डेट उसको याद रहती है। तो आई थिंक मुझे, जैसे सृजन ने ही राइटली पॉइंटेड आउट कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, आपने पॉइंट आउट किया कि किसी को आप पी के बता रहे थे, मुझे याद है कि मैं जब एक स्टूडेंट था, किसी कोचिंग क्लास के बाहर थे हम लोग, और एक में हमारा फ्रेंड था, वो अपनी यामा 135 पे आया, उसने एविएटर्स लगाए और उस पे मुंह में थी सिगरेट, और द आइडिया ऑफ दैट वाज सो कूल टू अस दैट यू थॉट यार ये तो जरूर करना है एक बार लाइफ में। तो बट या आई मीन फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, आई थिंक जो सृजन ने और प्रणव ने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया है कि आपका पहला, जो आप पहली बार जब ये सब चीजें करोगे किसी भी प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, या आपको कुछ यू फाइंड इट कूल, आई थिंक दैट फर्स्ट स्टेप विल डिसाइड वेदर यू बिकम एन एडिक्ट टू इट और नॉट। तो आप अगर वो पहला स्टेप अगर आपके पास आता है तो इट्स बेटर वो आप पहला स्टेप ले ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप कभी ना कभी तो सिगरेट छोड़ोगे, यू जस्ट वेस्ट मनी फॉर लाइक अ डेकेड और सो बिफोर लिविंग इट। एक मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज सृजन से पूछना चाहता हूँ। सृजन, आपने कहा कि जी। 2-3 बार आपने छोड़ने की कोशिश की, यू आर फाइनली एबल टू क्विट। आप निकोटिन गम पे है, आपने फिर उसको यूज किया और आप यू आर एबल टू क्विट। मुझे जहां तक कि मुझे लगता है, बिकॉज इट हैज हैपेंड विद मी एज वेल, आई वांटेड टू क्विट, आई क्विट फॉर लाइक 3 months, और फिर अचानक न्यू ईयर्स आ गया, देन वी वेंट पार्टी एंड देन इट वाज जस्ट लाइक राइट। एक से क्या होगा भाई। तो देन इट वाज अ फुल ब्लोन रिलैप्स फॉर मी। सेकंड टाइम व्हेन आई वांटेड टू क्विट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो पहली बार मैंने अपने आप को जो समझाया था कि मुझे क्विट क्यों करना चाहिए, आई हैड डिफीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मुझे सब कुछ पता था कि क्या लिटरेचर पढ़ा है, आई एम श्योर हम सब लोगों ने लिटरेचर पढ़ा है कि छोड़ने से क्या होगा, क्या हम पे विड्रॉल्स आएंगे, ये सब चीजें। तो मुझे बताइए सृजन, दूसरी या तीसरी बार जब आपने फाइनली क्विट किया तो आपके लिए कितना मुश्किल था वो? दूसरी तीसरी बार क्योंकि मैं गम यूज कर रहा था, विच इज बेसिकली यूर रिप्लेसिंग द निकोटीन। हाँ। तो शुरू में तो 1-2 दिन तो बहुत खुशी होती है, तो आदमी उस खुशी में ही निकल जाता है कि अरे यार आज मैंने सिगरेट नहीं पी, छोड़। तो कुछ भी विड्रॉल फील नहीं। 1-2 दिन यूर लाइक ठीक है, आई हैव डन वेल टुडे, कुछ नहीं। तीसरे दिन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो सिगरेट की जो किक होती है, इट्स इंस्टेंटेनियस, लाइक आप जलाते हैं पहले कश में ही यू फील इट, वेल निकोटीन गम इज लाइक थोड़ा थोड़ा करके आधे पौने घंटे में आता रहता है। तो योर बॉडी इज लाइक कि यार हो नहीं रहा है गम से, लाइक वी नीड सिगरेट इमीडिएटली, जिससे एकदम से बहुत सारा मिल जाए। राइट ये इट्स लाइक जो प्यासा होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी दो, उसकी प्यास नहीं बुझती है। एक बार में बहुत सारा पी जाए, ही विल बी लाइक ओके अब मुझे लग रहा है मेरी प्यास बुझी है। तो ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन। शुरू में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और बाकी विड्रॉल सिम्टम्स भी इसके साथ आ ही रहे थे मुझे। सो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली मूड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, यू बिकम इरिटेबल। आपसे कोई कल तक जो इससे आप नॉर्मली बात कर रहे थे उससे आप शायद चिल्ला के बात करने लगते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न खराब हो जाती है क्योंकि आपकी आदत है बॉडी की कि रात को निकोटीन लेके ही नींद आएगी। अब आपको वो मिल नहीं रही है तो आपको नींद आना बंद हो जाती है। that precious cigarette that you have after dinner. Exactly, the post dinner cigarette and the first cigarette in the morning. Now morning तक your blood is completely depleted of nicotine, तो बॉडी को कुछ भी करके सिगरेट चाहिए। वो वाला जो था, या योर स्टमक मूवमेंट्स, प्रेशर, योर स्टमक आपको अपसेट हो जाता है, वो बावल मूवमेंट्स की रेगुलरिटी आपकी खराब हो जाती है, ये सारी चीजें होने लगती हैं धीमे धीमे। एंड बट एट द सेम टाइम आप और चीजें भी नोटिस करने लगते हैं जो पॉजिटिव हैं, धीमे धीमे आती हैं। योर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि इनको वो कार्बन का फिल्टर का स्मेल आया, मुझे अपने कपड़ों से वो स्मेल आने लगा, उन कपड़ों से जो धुल चुके हैं, प्रेस हो चुके हैं, सब हो चुका है, लेकिन मैं स्मेल करके बता पा रहा था कि हाँ ये किसी स्मोकर के कपड़े हैं। मेरे आसपास दूर कोई सिगरेट जलाता था तो मैं सोचता था कि यार समवेयर समवन इज स्मोकिंग, कुछ तो हो रहा है। सो
आई थिंक फर्स्ट वीक तो मेरा इन्हीं सारे इफेक्ट्स में नोटिस करते में ही निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेड सृजन, जो प्रणव ने भी किया कि काफी सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आपके साथ होते हैं, बिकॉज आई थिंक आप इतना एडिक्ट हो चुके हो। और आई थिंक द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग अबाउट स्मोकिंग इज कि उसमें कोई एफर्ट नहीं है, देयर इज नो एफर्ट। सपोज यू नो इफ यू आर अरेंजिंग अ पार्टी एट योर प्लेस, you know, you get your booze, you get your, you know, chakna, you get your water, soda. There is a lot of effort that goes into it. While when you want to smoke, there is no effort. You just go and do it. I think that's a very dangerous thing that happens. एक चीज मैं प्रणव से पूछना चाहूंगा, फिर सृजन से भी बात करेंगे। most smokers gradually, you know, most smokers they mostly move in circles. मतलब हमारे, अगर हम लोग स्मोकर है तो हमारे आसपास पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हमारे आसपास भी जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते ही है, और उतनी ही मात्रा में करते हैं, शायद जितनी हम मात्रा में करते हैं, कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन करते हैं जरूर है। तो इस बीच में जब आप when you quit smoking, it becomes really difficult because you cannot just tell your friends to stop smoking just because you have stopped it, right? But आपको एक तकलीफ तो होगी कि जब आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और come on, let's be honest, our friends are not going to be so supportive that they're going to quit as well, so they will smoke around you. So प्रणव भाई आप बताइए, आप आई एम श्योर कि जब आपने छोड़ा तो आपके आसपास भी, आई रिमेम्बर कि प्रणव भाई के साथ तो मैंने भी सिगरेट पिए काफी समय पहले बहुत सालों पहले, जब इन्होंने छोड़ी तो इसके पहले। तो आपके आसपास जो लोग रहे होंगे वो स्मोकर ही रहे होंगे, तो जब आपने स्मोकिंग छोड़ी तो फिर आप मतलब हाउ डिड यू डील विद इट? क्योंकि लोग आसपास सिगरेट पी रहे हैं, क्या आपका मन नहीं किया? और अगर मन किया तो फिर आपने उनको क्या बोला, आपने खुद को क्या समझाया? नहीं, मैंने जिस दिन सिगरेट छोड़ा ना, तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो डेस्परेटली सोच के ही रखा था कि इसके बाद मैं जिंदगी में कभी सिगरेट पीऊंगा नहीं, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट झेलना जो मैंने चालू किया था 2008 में, जैसे छोड़ा मैंने, उसके बाद में जो साइड इफेक्ट झेलना चालू किया ना, विड्रॉल सिम्टम्स इतने हेवी थे, जैसे अपन बोल रहे बॉल मूवमेंट तो छोड़ दो आप, क्या हो रहा है साइकोलॉजिकली, जैसे अभी सृजन ने भी बोला कि किसी के साथ में बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, कोई बात करने है तो चिड़चिड़ ऐसे लगता था, तू चुपचाप रहे, व्हाई यू आर सेइंग, यानी कोई अच्छी भी बताने आ रहा है तो भी समझ में नहीं आती थी। ये कम से कम सिलसिला जो है महीने भर तक पे चला, और कोई अगर सामने आके सिगरेट पी रहा है तो उसकी तरफ देखते थे और ऐसे बोलते थे कि देख भाई मैंने सिगरेट छोड़ दिया, यू प्लीज तू जा यहाँ से, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दैट आल्सो। अभी मेरे को सिगरेट तो नहीं पीना है, ये मैंने ठान के रखा है, तो थोड़ा मेरा विल पावर बहुत अच्छा है उसकी वजह से, तो बहुत ही यानी ये था कि मैंने बोल दिया एक बार, और अच्छा मेरे मुर्गी की एक टांग है, तो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू चल निकल यहाँ से, तो निकल ही जाएगा, सामने वाले को मालूम है कि यार बहुत बेकार है। तो ये मुझे सपोर्ट किया, नहीं ये मेरा जो स्वभाव था ना, इसने मुझे सपोर्ट किया। आई थिंक आप, तो आपका जो एक विल पावर था, आपको जो आपका एक जो जिद थी, दैट सपोर्टेड यू, एंड आई थिंक गेटिंग इन टच, यू नो, गेटिंग आउट ऑफ दैट थिंग कि आपके जब दोस्त स्मोक कर रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि आप प्लीज मत करो। मेरे साथ 15 हाँ विदिन 15 डेज एक चीज और भी हो गई, जैसे मैं 15 डेज हो गए थे, तो उसके बाद में एक, यानी थोड़ा सा पढ़ता भी था मैं उसके बारे में, तो उसमें एक चीज मैंने देखा कि सराउंड में ना इतनी सारी चीजें हैं, ये जो पेड़ हमेशा इतना अच्छा झुका हुआ, जो रास्ते के बीच में रहता है, रास्ते के साइड में रहता है और उसका ऐसा झुकाव रहता है, इवन आई हैव नॉट नोटिस कि इतने सालों से यहाँ से आना जाना कर रहा हूँ, इतना सुंदर, ये जो चीजें है ना, ये नोटिस करना बंद हो गई थी। और जैसे सिगरेट में 15-20 दिन के बाद में जैसे मैंने नोटिस करना चालू किया ना, आई फाइंड कि यार बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हम लोग वो सिगरेट के ऐसा सिगरेट पी रहे हैं और उसी टेंशन में, उसी धुएं में जी रहे थे, बाकी सारी चीजें भूल गए थे। और वो रियलाइज चालू हुई जब से, तब से तो मेरा दिमाग से वो निकल ही गया, रियली निकल गया। पर एक बार मैंने और मैंने वापस ट्राई किया था, पान ठेले पे गया, बोला प्रणव भाई अभी तो तकरीबन 2 साल हो गए, तो एक बार ट्राई मार के देखते हैं क्या होता है, यानी अभी हो रहा है कि नहीं वापस की वही इंटेंसिटी है। गया वहां पे, जाने का सबसे पहला तो रेजिस्टेंस ये था, वहां पे जाने के बाद वो सिगरेट पान ठेले ने मेरे को ये बोला कि प्रणव भाई छोड़ दिए यार, अभी क्यों जबरदस्ती हाथ लगा रहे, बोला दे तो। वो सिगरेट हाथ में लिया मैंने, हाथ में लेने के बाद में ऐसे लगा नहीं यार, नहीं जम रहा है। I can completely associate with it, Pranav. सृजन से भी एक चीज पूछो, because मेरे भी साथ ये हो चुका है कि you know, at one point of time I was with a couple of my friends, he was smoking, and you know, he wanted to go to the toilet, and as the smoker is, he did not want to waste a cigarette, so was तो मेरे हाथ में दे दी। So but I felt so good when I realized कि मेरे हाथ में जैसे वो देके गया था वैसे ही थी वो,
मेरी पीने का भी मन नहीं किया, मेरा फेंकने का भी मन नहीं किया, मुझे उससे फर्क ही पड़ना बंद हो चुका था। तो सृजन से एक चीज मैं सृजन से पूछना चाहूंगा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रणव और सृजन, मुझे लगता है if you are addicted to smoking, there are, you know, you are dependent a lot on smoking. बहुत आपकी चीजें डिपेंडेंट है। जैसे मुझे लगता है कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप सिगरेट के बिना कभी नहीं जाएंगे। अगर रात को आपकी सिगरेट खत्म हो रही है तो आप इनसिक्योर होना शुरू हो जाएंगे, मेरी सिगरेट खत्म हो रही है, मेरी सिगरेट खत्म हो रही है। हो सकता है आप रात को निकल जाए कहीं सिगरेट लेने के लिए, ठीक है। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको सिगरेट पीना है, आपको फ्लाइट में जाना है तो जाने के पहले पीना है, उतरने के बाद पीना है। जब ये डिपेंडेंसी, frankly I feel that since I have stopped being dependent on it, I think my life has turned a lot. मेरा बहुत I can appreciate the other things in life. मैं डिपेंडेंट हूँ ही नहीं बिल्कुल। तो सृजन, आपको क्या लगता है, I mean how, what kind of changes did you notice जब आपने क्विट किया in terms of dependency? I'm sure आपकी भी बहुत डिपेंडेंसी रही होगी चीजों पे। राइट। एक तो आई थिंक टाइम बहुत बचना शुरू हो गया, जो कि बहुत बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि एक सेशन जो होता है उसमें 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। आप जाएंगे, बात करेंगे किसी से, कुछ होगा, टाइम ऐड होता रहता है। देन एक ऐप मैंने डाउनलोड की थी, इसके लिए ऐप की जरूरत नहीं है, आप पेन पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में खर्च कितना कर रहे हैं आप, वो अगर एडअप करते हैं, शुरू में उतना नहीं लगता है, बट यू नो ब्रदर प्रणव हियर इज अ सीए, तो इन लोगों की आदत होती है वेयर दे शो यू कि अगर आप दिन में इतना सेव कर रहे हैं तो महीने में इतना और साल में इतना होता है। व्हेन यू डू दैट मैथ फॉर योरसेल्फ, यू रियलाइज। सृजन भाई, हाँ कि मैंने दिन में 10 सिगरेट की है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एंड 25 रुपीज। I think एग्जैक्टली वही मैथ करके आई रियलाइज कि फाइनेंशियली इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, टाइम काफी मेरा बच रहा है, एंड मेरे जो दोस्तों से इंटरेक्शंस थे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त इसलिए लाइक मे बी उनका इंट्रोडक्शन स्मोकिंग के थ्रू हुआ है, लेकिन अब वो आपके दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं, वो आपके दोस्त इसलिए क्योंकि वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स पे उस पर कुछ अफेक्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो। एक जो डर होता था कभी कभी कि घर पे आ रहा हूँ, स्मेल आ रही है कपड़ों से, ये वो वाला पूरा चला गया, तो थोड़ा उसके लिए केयर फ्री हो गया। देन बॉडी में मैंने काफी चेंजेस नोटिस किए, मूड आपका अच्छा रहने लगता है, एंड फिजिकली यू कैन रन मोर, यू कैन वॉक मोर, यू कैन डू मोर एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका टेस्ट ऑफ स्मेल और ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले क्या होता था, लाइक पहले तो खैर हम पे उतने पैसे भी नहीं थे, सो वी यूज्ड टू ड्रिंक ओनली लाइक से चीप अल्कोहल, तो उसमें हमें उतना टेस्ट पता नहीं लगता था, बट क्योंकि हम स्मोकर्स इतने थे, कुछ डिफरेंस होता भी तो हमें शायद पता नहीं लग पाता। But I think Srijan, one crazy thing about smokers is कि आपके पास पैसे नहीं भी हो तो आपके पास पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, आ जाते हैं, कहीं से आ जाते हैं from somewhere, yes, you will definitely arrange it. So but now, like, if there are even minute differences between smells, या people smell different, for example, या दो परफ्यूम है अलग अलग, उनके स्मेल जो पहले सिमिलर लगती थी अब वो अलग लगने लगी, एंड लाइक प्रणव सेड, now that your mind is not fixated on that one thing, तो आप आसपास चीजें ज्यादा नोटिस करते हैं, ऐसा लगता है दुनिया थोड़ी और ज्यादा खुली हुई है। एक चीज और पूछना चाहूंगा सृजन कि जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि चीजें अलग लगने लगती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्मोकर्स ट्रेडिशनली, smokers and alcoholics as well, traditionally they have been observed as some kind of freaks by the society, ठीक है। if you see a person smoking, एक नॉन स्मोकर हमेशा, and rightly so, he'll always try to stay away from the person, क्योंकि वो स्मेल भी इरिटेटिंग है, वो हैबिट भी इरिटेटिंग है, सब कुछ है। right. What kind of notice did you see in people around you towards you? जब आपने सिगरेट छोड़ी तो लोगों का पर्सपेक्टिव आपके तरफ कैसे बदला? हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। जो लोग स्मोक करते थे मेरे साथ पहले, वो बहुत सरप्राइज हो गए, दे थॉट मजाक कर रहा है, एक दो दिन बाद मांगेगा ये वो, बट देन दे रियलाइज मजाक नहीं कर रहा है, एंड दे वर सपोर्टिव, दे वर लाइक ठीक है। एंड एक्चुअली मैं भी उनसे उधार मांग के कभी कभी पी लेता था ना, सो दे वर लाइक अच्छा है, अपना भी फायदा है, कम हो गया एक बंदा। So and parties and everything में if I'm being introduced to someone, people generally expect कि आप smoke कर रहे हैं,
in certain situations. They will ask you ki, do you smoke? And you're like, no, I don't smoke. And that's it. Like उसके आगे कोई ज़्यादा पूछता नहीं है. So I think among people perception जो है उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. जो लोग मुझे जानते थे they were surprised कि इसने छोड़ कैसे दी, ये झूठ बोल रहा है, कुछ करता होगा. But the people who didn't know me, I think they were, in fact, I found it easier to talk to some of them. But हाँ, कुछ जगह इसका उल्टा भी होता है, because sometimes at parties or concerts, one way of striking a conversation is asking कि if do you have a lighter, है ना? अब हम ना lighter ना matches कुछ हमारे पास, तो we just say no, I'm sorry, और फिर बात नहीं हो पाती है. So yeah, that is one change I've noticed. Pranav, आपको क्या लगता है? आप you know, I remember when I was once a CA student and a pretty bad one at that, as you know. So मुझे याद है कि जब मैं हमारे CA इंस्टीट्यूट से हम लोग निकलते थे और जो सीनियर्स थे हमारे, उनको पता होता था कि ये लड़का जो है सिगरेट पीने जा रहा है, तो किसी ने मुझे टोक दिया था एक बार, किसी सीनियर ने, कि अरे तुम सिगरेट कैसे पी सकता है, नहीं पीना चाहिए. एंड राइटली सो, उस टाइम सुना नहीं हम लोगों ने. लेकिन I observed that, you know, people are pretty judgmental towards smokers. They're very judgmental, and as I said, rightly so, सबको अपनी अपनी तकलीफें हैं, उनको तकलीफ भी होती है. तो आपको स्पेसिफिकली कितना चेंज आपने लोगों में देखा जब आपने when you quit smoking और लोगों को पता चला, लोगों का रिएक्शन, लोगों का परसेप्शन आपकी तरफ कैसे चेंज हुआ? राइट, इसमें ऐसा हुआ है कि जब सबसे पहली बात तो जब हम लोग सिगरेट पीते थे तब हमारा बिहेवियर किस तरह का था वो देखिए, यानी इसमें थोड़ा सा अपना साइकोलॉजिकल पार्ट भी था एंड लोगों का बिहेवियर भी है. उसमें दोनों तरफ से हम देखेंगे कि सिगरेट पीना है तो मैं छुपाते कहीं, क्योंकि देखिए मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, या फिर किसी यानी कुछ यानी बैड इमेज जाएगी, ये वो जो भी होगा व्हाट एवर इट मे बी, लेकिन मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं अपने पैसे से पी रहा हूँ, ये वो मुजोरी तो रहती है. होता क्या था, ऐसा लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति ना देख ले जिसके सामने मेरी इंप्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए थी और खराब हो जाएगी, ऐसा विषय जो सबसे पहले था. तो मोर और लेस हम लोग ना पीपल यानी जो सोसाइटी में थोड़ा रिजर्व साइड से रहते थे और साइड में छुपा के सब सारी चीजें करते थे, ये मान के चलते हैं. और उसके बाद में जैसे मैंने छोड़ दिया, यानी जैसे अभी सीए इंस्टीट्यूट में आपको भी मालूम है, होता कैसा था कि सभी लोगों को मालूम था ही इज अ चेन स्मोकर, और ये 10 बार बाहर जा रहा है, 10 बार बाहर जा रहा है. देखिए इंप्रेशन खराब होता ही है, ये 10 बार बाहर जा रहा है. हम अगर कंटिन्यूसली कोई ड्रिंकर होगा तो उसकी तो बास को भी आती है, ये जो है, और बात भी आती है, और वो साइड में बेचारा अपने धुन में पड़ा रहता है. स्मोकर जो है ना वो इन बिटवीन रहता है सब लोगों के, उसके मुंह की भी बात आ रही है, उसके बदन की भी बात आ रही है, लोगों को इरिटेट भी होता है, वो सोचते हैं कि यार इससे ज्यादा पास में नहीं जाना चाहिए, नहीं, वो साइकोलॉजी डेवलप होती है. फिर धीरे धीरे जैसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में ना ऐसे लगता था कि यार हर एक जन सोचता था कि यार प्रणव बहुत अच्छा किया, एक तो बहुत अच्छा किया, तो छोड़ दिया सिगरेट पीना, बास भी नहीं आ रही है, और अभी यानी जो हम लोगों को चाहत थी कि यार इसने मेरे पास में आना चाहिए, जो दोस्त गले मिलने वाली किस्सा जो है, एक झप्पी वाली किस्सा, तो अभी सबसे झप्पी मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले तो झप्पी मिलना बोले तो बहुत दूरी है, तो दूरी खड़ा रहे, यहाँ पे आ मत. तो जो रिलेशंस है, रिलेशंस में भी ये चीजें होती थी कि भाई एवरीवन नोज नहीं, अभी ये बंदा जो है सिगरेट नहीं पीता है एंड ही इज वेरी नाइस बॉय. और अपना नेचर भी तो चेंज हुआ ना, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली लेना चालू किया, लोगों को समझ रहे हैं, अपने आप को समझाने का चांस दे रहे, जो हम लोग नहीं करते थे जब सिगरेट पीते थे. तो ये बहुत सारे चेंजेस आ गए. पॉजिटिविटी, आई थिंक प्रणव भाई आप एक बहुत सही चीज बोले आपने, कि जो स्टेंच की हम लोग बात कर रहे, सृजन ने भी बोला उनको स्टेंच आई जब उन्होंने सिगरेट छोड़ी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्मोकर्स अंडर एस्टिमेट दैट. उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे घर पे, आई थिंक मेरे घर पे पता था हमेशा से, तो बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम माय होम, बिकॉज पर्टिकुलरली सो मुझे लगता था कि किसी और ले आके नहीं बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये सब करता हूँ. तो लेकिन स्टेंच, आई थिंक स्टेंच इज समथिंग व्हिच इज वेरी पेक्यूलियर इन टर्म्स ऑफ अ स्मोकर. शायद उन्हें समझ, वो स्मोकर को समझ में नहीं आएगा, एक नॉन स्मोकर को हमेशा समझ में आएगा. व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब एक चीज है कि प्रणव भाई और सृजन भाई, आपने दोनों को मैंने बताया कि द होल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू टू इंस्पायर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्विट स्मोकिंग. व्हिच ब्रिंग्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे कहा कि आपने भी कहा, दोनों ने कहा ट्रिगर्स है,
ठीक है, chai is a trigger for smoking. Okay, alcohol is a trigger for smoking. I remember when I quit smoking for the first time, I quit alcohol as well for 3 months before I had a relapse of smoking. दूसरी बार भी जब when I quit smoking for good, when I was finally able to, I quit alcohol for a month or so because I did not want to get triggered by it. मेरे को trigger नहीं चाहिए था. But fortunately, I was able to come over it. Now I can have a chai in relief. I can have a glass of my whiskey in relief. Not that it is good as well, but yeah, I mean, we all do it, right? सो हाउ डू यू, जो नॉन स्मोकर्स, जो हमारे बीच में स्मोकर्स है, जो क्विट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू नॉट smoke whenever you are having your chai or whenever you are having your glass of alcohol or something like that. तो आपने सबसे पहले सीजन आपसे हम लोग शुरुआत करते हैं कि how was it for you, because I am sure आपने ट्रिगर्स को कैसे, चाय है, अल्कोहल है, या कोई और ट्रिगर है, कॉफी है या कुछ और है, या आप कहीं जाते हैं तो आपको कंपलसरी है, कहीं किसी डैम के किनारे जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं तो आपको कर so how did you manage to deal with all these triggers? हाँ, वो आई थिंक डेफिनेटली एक सबसे जरूरी चीज है. मेरा एक ट्रिगर था बीइंग आउट इन द ओपन एयर, कि पूरा दिन कमरे में काम किया है तो बाहर अगर मैं सांस लेने जाऊंगा तो आई विल आल्सो स्मोक. तो मैंने पूरा दिन कमरे में ही रहना शुरू कर दिया. इट वाज शुरू में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट इट वाज माय बिगेस्ट ट्रिगर, तो मैंने वो अवॉइड किया. जो लोग थे उनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि यार मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, एंड डू नॉट गिव मी सिगरेट्स. ठीक है, मैं मांगू तो मुझे देना मत, आप लोग कीजिए, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ. जो पान टपरी थी, जिस रास्ते से मैं निकलता था, वहां से मैंने जाना चेंज कर दिया, क्योंकि सामने वो दिखता था वही याद आता था. पॉकेट में ज्यादा चेंज मैंने कैरी करना बंद कर दिया, क्योंकि जेब में से 10-15 रुपए पड़े मिल गए तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है. बट इफ यू आर जस्ट कैरिंग बड़ा नोट है कोई या कार्ड है, तो यू आर लाइक नहीं, आज उतना नहीं हो पाएगा. स्ट्रेस जो होती थी उसको डील करने के मैंने और तरीके निकाले. लाइक अगर मुझे काम के बाद ब्रेक चाहिए, मेंटल ब्रेक चाहिए, तो मैं वो मेंटल ब्रेक और कैसे ले सकता हूँ. आई स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक इंस्टेड, कि यार चल 15-20 मिनट गाने सुन लेंगे तो उससे वो ट्रिगर चला जाएगा. एंड इवन इन पार्टीज एंड एवरीथिंग, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, सिंस एवरीवन अराउंड यू इज स्मोकिंग एंड एवरीथिंग. बट it just helps after a point if you just tell yourself कि I'm having something good with me, like a drink or something, और मैं उसका taste destroy कर रहा हूँ. Somewhere I started taking more interest in what I was drinking, चाहे वो पानी ही हो. But I was like कि नहीं, मुझे इस पे ध्यान देना है जो मैं अभी कर रहा हूँ. अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे खाने के स्वाद पे ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि इसके खाने के बाद जो सिगरेट मिलेगी उससे मेरे दिमाग पे क्या असर होगा. Just concentrating on the food. So all these triggers, all these things that remind you of smoking, जो आपके हाथ में एक तरह से कुछ तलब मचती है कि हाँ यार कुछ, there needs to be something. Put something else in your hand, put a pen, do something else. Tough होता है, but you have to do it consciously. अपने आप नहीं होता है. And obviously there will be relapses. मैंने काफी अच्छी चीज पढ़ी थी इंटरनेट पे, उसमें लिखा था कि रिलैप्स को कभी भी फेलियर नहीं मानना चाहिए. बहुत से लोग होते हैं जो जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 1 साल स्मोक नहीं किया, फिर एक सिगरेट मार ली तो देर लाइक अरे यार मेरा वापस जीरो हो गया. क्योंकि उससे क्या होता है, यू थिंक क्योंकि अब मैं जीरो पे हूँ तो छोड़ के आई फर्क पड़ता है, मैं दूसरी भी पी लेता हूँ, तीसरी भी पी लेता हूँ. यू शुड जस्ट टेल योरसेल्फ कि इट्स लाइक मे बी लाइक गोइंग ऑन अ डाइट और समथिंग. आपने 1 महीने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट की, देन एक दिन आपने पिज्जा मंगा के पूरा खा लिया, डजंट मीन आप दूसरे दिन भी पिज्जा मंगाएंगे. इट मीन्स आप दूसरे दिन से कहेंगे चल यार कोई नहीं, एक दिन ज्यादा खा लिया, इस हफ्ते बर्न कर लूंगा कैलोरीज एक्स्ट्रा. सो थिंक ऑफ इट एज एक्सरसाइज, कि अगर आपका रिलैप्स हुआ भी है, डजंट मीन यू अबैंडन द होल प्रोजेक्ट. इट्स लाइक अ टेम्परेरी हर्डल. एक पीली चल कोई नहीं, कोई पाप नहीं हो गया. Very nicely put, Srijan. Very Stop nicely thinking put. of it. Because मैं एक चीज, I think I have observed one thing. जब मेरा relapse हुआ था, I was ashamed of myself. I was so ashamed of myself. Same. I thought, मैंने यार कितना बड़ा पाप कर दिया है, और मुझे बाद में ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब तो रिलैप्स हो गया है तो हो ही चुका है. But for all those people who are watching this, I would like to tell you that relapses do happen. But as Srijan rightly pointed out, कि
को आप एक प्रैक्टिकल तरीके से लीजिए, लाइक यू हैविंग अ पिज्जा कि मैं अगले हफ्ते कैलोरीज बंद कर लूंगा। 0 से अगर आप 1 पे भी आ गए तो 1 से 0 पे भी जाना मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप कर चुके हैं पहले वो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड कि रिलैप्सेस कैन हैपन, बट यू हैव टू कीप देम अंडर कंट्रोल एंड देयर इज नो रीजन टू थिंक कि एक बार रिलैप्स हो गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज। प्रणव भाई, आपसे भी जानते हैं सेम क्वेश्चन कि आपने कैसे अपने ट्रिगर्स मेंटेन किए। जैसे आपने कहा कि किसी मीटिंग में बैठे तो एक 10-10 मिनट में आप जा रहे हैं, हर 10 मिनट में कहीं बाहर जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं, तो ये सब ट्रिगर्स है। आदमी जो है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही एफर्टलेस है, स्मोकिंग इज वेरी एफर्टलेस। मैंने तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट, व्हेन आई क्विट स्मोकिंग, बाय द एंड ऑफ द इट, जब मैंने क्विट किया स्मोकिंग, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, इंस्टिंक्टिवली मैंने एक सिगरेट जला ली, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। इट इज सो इनग्रेन्ड इनटू यू। एक सिगरेट आपके पर्सनालिटी में इस तरीके से इनग्रेन्ड होती है। आपको सुबह पीना है, आप किसी के साथ बैठे हो पीना है, आपको कहीं बाहर जा रहे हैं पीना है, खुले आसमान में पीना है, पानी से निकलने के बाद पीना है, एवरीथिंग। सो आपने कैसे अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल किया प्रणव भाई? यस, एक्चुअली होता ऐसा है, इट हैपेंस मैकेनिकली, यानी अपने दिमाग में ना वो सेट हो जाता है कि यहाँ पे बैठे हैं और अपने हाथ में होना चाहिए, अपना मुंह पे हाथ जाना ही है, और वो सारी चीजें ना मैकेनिकली होती है। उसको जैसे हम एक बार साइकिल चलाना सीख लेते हैं ना, तो उसके बाद में वो कभी जिंदगी में नहीं भूलते। वो बराबर साइकिल के सीट पे बैठ गए तो पैडल अपने आप मारना चालू हो जाता है, बैलेंसिंग अपने आप आ जाती है। तो उस टाइप का वो सिगरेट का है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो मैंने ये सीखा है ना, अभी मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा हुआ है कि हमें ना सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करना पड़ता है एक्चुअली। यानी कॉन्शियसली हमको थिंक करना है कि यार ये तो नहीं करना है। कॉन्शियसली क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल जो दिमाग बन गया है, सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, उसको निकालने के लिए कॉन्शियसली सोचना है कि नहीं, मुझे पीना नहीं है। एंड वो जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो उसको अगर हमको कॉन्शियस माइंड को अगर हम लोग ट्रेन करना चालू कर रहे थे, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको लेना चालू कर देता है, उस अपने आप में ग्रास्प करना चालू कर देता है कि ये चीज अपने को नहीं करनी है। तो उसके लिए करना क्या है फिर? तो हमको करना क्या है, कहीं पे भी जाओ आप, जस्ट थिंक ऑफ कि बेनिफिट्स जो, यानी अपनी जो अच्छी चीजें हैं, देखो बेनिफिट्स के पीछे में तो सभी लोग पड़े हुए हैं। अब हम लोग अगर वहां पे जाके, अगर मैं काम करने बैठा हूँ तो काम करते करते अचानक से याद आता था, अरे थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं और चला सिगरेट पीने के लिए। तो ये जो 2 मिनट का ब्रेक है उसमें मेरी लिंक टूट जाती है। लिंक टूटने के बाद में वापस मुझे लिंक लाना एंड वापस उसको चालू करना, और वो चालू करने के बाद में फिर थोड़ा सा लाइन अप होते बराबर फिर से याद आएगी। तो मैंने ये चीज सोचना चालू कर दिया कि नहीं, ये काम करना है, नहीं ये काम कंप्लीट करते हैं पहले, बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। और मैं सोचता था कि इसको मैं भूल जाऊं, इसको मैं भूल जाऊं, और ये सारे काम, ये काम होने के बाद में अनेक, मैंने अचानक से दूसरा काम ले लूंगा। फिर किसी से अच्छे से बात करते हैं हम, कि कोई अपना माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं वो चीज सोचना ही नहीं है मुझे कि मुझे सिगरेट पीना है, ये सोचना नहीं है। और दूसरी बात, अगर जिस वक्त में भी मुझे याद आए ना कि मुझे सिगरेट पीना है, तो मैं वही बोलता, यानी सिगरेट पीने की याद भी आती है ना, तो मैं सोच रहा था नहीं मैंने छोड़ दिया ना, और मैंने तो बंद ही कर दिया है, व्हाई शुड आई थिंक ऑफ दैट, खत्म। तो इस तरह से मैंने अपने आप को पक्का किया था। और लोगों को भी मैं बताते जब फिरता हूँ कि अरे ये इससे ये है, तो जो साइड इफेक्ट्स है वो स्मोकिंग की वजह से जो साइड इफेक्ट्स है, और मैंने तो पहली बात बताया था कि जैसे वो आज भी याद है मुझे, उसकी बात जो है ना आज भी मुझे इरिटेट करती है, आज याद आती है। तो वो जो बांस है, तो मैं हर एक को भी बताता हूँ आज की तारीख में कि देख ये निकाल के देख कैसी बांस आ रही है, यानी तेरे को समझ में आएगा। वो उसके जो सिगरेट के पीछे फिल्टर लगा, उसको हाथ लगा के भी अगर तू सूंघ के देखेगा तो यू विल इरिटेट। तो ये सारी जो चीजें है ना, वो माइंड में मैंने अपने घर बनाना चालू कर दिया था। इसकी बात आती है, अपने बदन की बात आ रही है, अच्छा इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, अच्छा यहाँ पे रुकना नहीं है ना। सृजन ने भी आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने प्रणव आपने यू हैव मेड अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज आई थिंक आई एम्प्लॉयड दिस पर्टिकुलर टैक्टिक एज वेल। जो सिगरेट पीने के बारे में जितनी सारी बुरी चीजें थी, आई हैड इंग्रेन्ड इट सो डीप इन माय माइंड कि मैं फिर ऑटोमेटिकली मैं करता ही नहीं था ये सब चीजें। और एक चीज पर्टिकुलरली आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। हाँ, आपको खुद हो कि ये सारी चीजें करना है, अपने आप में ठानना है, किसी और ने बताने की नहीं है। ये किसी के बताने से नहीं छूटती है वो।
हाँ हाँ, वो इसलिए that's what the point that I was खुद ही coming आपको to. रियलाइज करना है। You cannot leave it, you cannot quit it when somebody else wants you to quit it. आप कभी नहीं कर पाओगे, आपको until unless आप खुद ये जानते हो. I remember जब पहले तो जब मैंने स्मोकिंग छोड़ी 2-3 महीने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर कोई आसपास सिगरेट पी रहा है तो, बस एक दिमाग में एक रिजॉल्व था कि मुझे नहीं जाना है उस तरफ. लेकिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद में मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जो मेरे आसपास सिगरेट पी रहे हैं, the stench was so bad. and, and you know, Yes. I felt it for people who were around me and who did not smoke. यार इन लोगों को तो क्या ही बीत रही थी. But obviously you cannot tell it to your friends कि यार मत कर उधर की सिगरेट, क्योंकि वो आपको यही बोलेंगे चल चल अभी तू चल रहे क्योंकि तूने बहुत साल पिया है तो ये सब नहीं बोल सकता तू. लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, एक बहुत ही एक चीज जो मेरे को जो स्ट्राइक कर गई कि इफ दिस स्मेल्स सो बैड, इट्स अ बर्निंग, एक बर्न, कुछ जलने का स्मेल आप फील करना महसूस करते हो, जब महसूस करना शुरू करते हो जब आप छोड़ देते हो. मुझे ऐसा लगता है कि यार बाहर में इतना खराब है, हम लोग इसको पी रहे थे इतने साल, अंदर क्या जला रहे हैं हम लोग. तो मुझे हमेशा से Yes. वही फीलिंग आती हाँ थी. एग्जैक्टली। It was a very bad feeling to have. So in the last wave, in the first COVID wave, I left smoking on 17 June 2020, and 3 months after that, in the month of September, my entire family tested positive for COVID. I fortunately did not have a single symptom. I did not have a single symptom, and I can't help but wonder कि अगर मैं सिगरेट पी रहा होता तो शायद मेरे पे कितना बेकार उसका इफेक्ट हो सकता था. And I was very happy that I quit. जब टाइम था तो मैंने छोड़ दिया. तो which brings me to a very important question. कोविड भी है और बाकी भी चीजें हैं, और apart from that, and we all know there are 10-15 types of cancers that are associated with cigarettes, and cancers are the least. I mean, cancers तो बहुत बाद में है. Hypertension है, आपके respiratory issues है, सब चीजें हैं. एक क्रॉनिक कफ है, साल भर कफ है, आपको सुबह उठते बराबर कफ है, रात को सोते बराबर कफ है. umpteen number of digestive problems a smoker has. उसको रियलाइज नहीं होता, लेकिन क्विटिंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था मेरा. तो मुझे एक बात बताइए कि सृजन, आपसे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने कहा लॉस ऑफ टेस्ट, ऑफ लॉस ऑफ स्मेल, जो पहले आपको लगता था कि टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया, आपका सेंस बहुत अच्छे हो गए. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज वेल, व्हाट वुड यू से कि आपने क्या गेन किया है आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग? वन थिंग आई रियलाइज, शुरू में थोड़ा वेट गेन हुआ मुझे क्योंकि खाने का स्वाद ज्यादा आ रहा था. मेरे को भी. तो शुरू में यू गेन वेट, बट लंग्स आपके टायर्ड नहीं होते हैं उतनी जल्दी, और वो जो कॉफ चला जाता है एक बार, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, क्योंकि आपकी बॉडी को खांसने की इतनी आदत हो गई है. एंड कॉफिंग इज अ होल बॉडी एक्सरसाइज, राइट? आपके शोल्डर्स भी टाइट होते हैं, आपकी गर्दन भी हिलती है, आपका थ्रोट भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सब कुछ होता है. तो जब एक बार आपकी कॉफिंग चली जाती है, इट्स अ लॉट लेस स्ट्रेस ऑन द बॉडी इटसेल्फ. मैंने वो नोटिस किया. मुझे पिछले 1-1.5-2 साल से कोई भी खांसी जुकाम किसी भी टाइप का, उस टाइप का कोई इशू नहीं हुआ है. जो एक हाथ शेक होने का इशू होता है, विच आई जनरली हैव पहले से बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, वो अब काफी कम हो गया है. दैट इज अनदर थिंग आई नोटिस्ड. नींद अच्छी आती है, बीच में नहीं उठती, बीच में नींद नहीं खुलती है वो. एंड आई थिंक इन जनरल एक पॉजिटिव चेंज आप करते हैं लाइफ में तो आपको लगता है यार चल अब दूसरा भी ट्राई करते हैं. तो सिगरेट छोड़ी, उसके बाद आई वाज लाइक कि चल यार अब थोड़ी डाइट भी ठीक की जाए. देन आई वाज लाइक कि यार ओके, मे बी आई शुड ट्राई अ जिम आल्सो. So it's like a key, it unlocks many doors to other health का this thing. And मेरे blood tests जो सब थे वो काफी अच्छे आए when they happened, like all the levels were good and everything, क्योंकि carbon monoxide binds to your blood faster than hemoglobin does, right? तो once you stop smoking, वो एक चीज अच्छी हो जाती है, तो आपकी रेड ब्लड सेल्स की, हीमोग्लोबिन की जो भी काउंट है, इट रिटर्न्स टू नॉर्मल लेवल. सो इवन एट अ मेडिकल लेवल यू कैन सी कि हाँ डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं. Exactly, I completely agree, Srijan, because ये चीज मैंने भी नोटिस किया when I quit smoking for the first time. I think I started going to the gym. I thought कि यार ये भी ट्राई कर लेता हूँ, I thought ये भी कर लेता हूँ, डाइट भी कर लेता हूँ. ब्लड टेस्ट वगैरह जो आपने बात किया वो भी मैंने ऑब्जर्व किया कि वेरी सब्सटेंशियल चेंज इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 months. माय कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वर वेरी प्रीटी मच डाउन, गुड कोलेस्ट्रॉल वाज अप, प्रीटी ड्रास्टिक चेंजेस. प्रणव भाई, आपसे जानते हैं, आप इन टर्म्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग आप हमारे बुजुर्ग हैं क्योंकि आपने बहुत पहले छोड़ दी थी. हम लोगों ने अभी भी छोड़ी है. तो मुझे बताइए कि आपके क्या आपको याद आता है कि क्या हेल्थ चेंजेस आपके में आए थे, और
किस तरीके के चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए अपने आप में? अमर भाई, आपको याद होगा मेरा जब हम लोग वहां पे मिलते थे तब मेरा चेहरा कैसा था और नाउ हाउ आई एम लुकिंग. Now that you talk of it, now I remember. हाँ. दैट इज द थिंग व्हाट आई रियलाइज की एक्चुअली क्या होता था. सिगरेट पीना है ना तो वो पूरे गाल बैठे हुए थे थोड़ा यानी, और आंखों में भी ऐसा पूरा ब्लैकिशनेस. मैंने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑल फुल बॉडी जो है एक पूरी तरह से यानी पेन देता था मुझे, यानी कहीं ना कहीं पेन वगैरह ये वगैरह और स्टिफनेस, स्पॉन्डिलिसिस और ये क्या क्या नहीं सारी चीजें डॉक्टरों ने जो जो नाम दिए हुए डिसीजेस के सारी चीजों को वो बोलते थे और मुझे दवाइयां देते थे. मैंने सब कुछ खा चुका हूँ जबकि मैंने टेस्ट नहीं किया. लेकिन जैसे जैसे मैंने ये सारी चीजें छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ने के बाद में ना हैप्पीनेस जो बढ़ा है मेरा इनसाइडली, मैं जो हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं. दो यानी छूटने के बाद में यानी 35 सिगरेट्स एंड डे 2 नो सिगरेट यहाँ से शुरू जब किया था मैंने, तो साइकोलॉजिकली तो आपको ने बताया कि मैं एकदम से यही हो गया था, ब्लैंक ही हो गया था. लोगों के नाम नहीं याद आते थे, कुछ काम नहीं याद आता था, काम करने बैठा भी यानी आता था मैं और आके ऐसे बैठ के चले जाता था. लकीली मेरे पास में एम्प्लॉय अच्छे थे और घर वाले अच्छे थे, उनको समझता था कि नहीं इसने छोड़ रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें कर रहा है तो इसको कोई टेंशन नहीं देना है. तो वो अपने इसमें धुन में रहता था मैं, लेकिन सबको ये मालूम है कि ये अपने आप को भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. तो धीरे 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 करते करते अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नेचर का भी आनंद लेना चालू कर दिया. मैं हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप में चेंजेस. और मेरे दोस्तों ने, मैंने सबसे बड़ी चीज जो है मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव ने मुझे नोटिस करना चालू किया, प्रणव बहुत बढ़िया मूड दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सारी चीजें. ये चीजें मैंने जो सबसे ज्यादा मैंने अनुभव किया है. तो स्मोकिंग छोड़ने के बाद में ये मेन चीज हुई है मेरे साथ में. आप मैं आई थिंक मैं भी इसको एक चीज को ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सृजन ने भी बोला कि बहुत सारी चीजें आपको, आपका शोल्डर दुख रहा है, आपको फटीग महसूस हो रहा है. आई रिमेम्बर व्हेन आई क्विट एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट वॉक द ट्रेडमिल फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं कर ही नहीं पाता था. मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरी बहुत ज्यादा उम्र है और ये सब चीजें मैं क्यों नहीं कर. एंड इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड स्कैरी एट फॉर मी एट द सेम टाइम. बट आई थिंक फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे चेंजेस है. सो पीपल हुएवर यू वॉच, आई मीन जो भी लोग देख रहे हैं, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग आर फार मोर than the short time withdrawals that you can have after quitting. One last question I would like to ask Srijan as well. मुझे नहीं पता Srijan आपके if your family ever knew that you used to smoke or something like that, but in my case my family knew, everybody pretty much knew because I did not care. That for me my cigarette was very sacred, my smoking was very sacred, and I did not care किसी को पता है मेरा इंप्रेशन क्या जा रहा है, कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता था. तो लेकिन जब मैंने when I quit, my family was very happy. My people who cared about me, my friends, they were very happy because even though some of my friends, उन्होंने किसी ने मुझे देख के भी छोड़ी, मैंने किसी को देख के छोड़ी. तो a person like me who would always carry a packet of cigarette in his pocket, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, शायद आपने भी शायद नोटिस किया होगा. जब जो आदमी पैकेट लेके चलता है उसके दोस्त अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास तो होगी, तो हम नहीं खरीदते. So when I went to a friend's place once and रात को मैं उसके घर पे था and he 3 महीने बाद जब मैं छोड़ चुका था, उसने मुझे अचानक से इंस्टिंक्टिवली बोला यार सिगरेट पिला. मैं तो छोड़ चुका हूँ. And at 11 in the night, that guy ran here and there to buy cigarettes. At that point of time, I realized कि यार ये कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी से मैंने मतलब अपने आप को बचा लिया है. कितना डिपेंडेंसी कितना ज्यादा था, मेरा भी यही था. तो family, in terms of friends, how would you say how people who care about you, how happy they are after you quit smoking? I think my parents are pretty happy. मतलब कभी ऐसे उनको मैंने बताया नहीं, छुपाने की कोशिश की, बट पता तो लग ही जाता है, राइट? पेरेंट्स को भी क्या सब पता लग ही जाता है. What is कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी जो रहती है ना उसकी सुगंध छुपती नहीं है. कस्तूरी की सुगंध छुपती, एग्जैक्टली. वो तो अभी कपड़े जैसे धुलने गए हैं तो उनको आइडिया हो ही जाएगा. नाउ दैट आई यूज गम, आई एम एबल टू यूज इट फ्रीली. कोई टेंशन नहीं होती है. घर पे अच्छा लगता है उनको. मेरी फैमिली में और भी स्मोकर्स हैं, इमीडिएट फैमिली में नहीं बट एक्सटेंडेड फैमिली में. उन लोगों की उनको बहुत चिंता रहती थी, वो मुझे दिखता था. मेरी अबू उतनी चिंता उस मामले में नहीं करते हैं, वो अच्छा है. माय फ्रेंड्स आर आल्सो हैप्पी कि छूट गई है. मतलब कोई भी ये नहीं कहता कि तूने छोड़ के गलत कर दिया या तुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी या कुछ. एंड इन जनरल आई थिंक एवरीवन इज हैप्पी
किसी को कोई इशू नहीं है। टपरी वाला कभी कभी अगर कोई पुराना दिख जाए तो बोलता है कि अरे साहब आप आए नहीं बड़े दिन से, बट अदर देन दैट कुछ नहीं। एज अ क्लोजिंग नोट, एक चीज मुझे अभी जस्ट याद आई थी व्हिच आई थिंक माइट हेल्प द स्मोकर्स अमंग अस हु आर ट्राइंग टू क्विट। मैंने एक चीज पढ़ी, और ये बहुत गलत आदमी था एडवाइस लेने के लिए, बिकॉज दिस वाज अ गाय हु हैड ट्राइड, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ही हैड ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, all kinds of illegal drugs. So we will not be naming the illegal drugs. The most legal thing I can name is say alcohol. And he said the thing about drugs is every drug gives you a different effect on the mind which you enjoy. Alcohol का भी एक अलग नशा होता है जो आप एंजॉय करते हैं। सिगरेट इज द वर्स्ट ड्रग इन द वर्ल्ड, क्योंकि सिगरेट का एक ही इफेक्ट है, वो अपने विड्रॉल सिम्टम्स को दूर करती है सिर्फ। Cigarette doesn't give you any good effect. It just removes the bad effect you get from not having a cigarette. So he said ki, would you still consider doing such a drug which gives you no pleasure but removes its own withdrawal effects? And that's when I realized कि हाँ यार, कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ सिगरेट पी के कि यार मजा आ गया सिगरेट पी के, फील आ रही है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, सब दोस्त आए हैं चलो सिगरेट पीते हैं, किसी का बर्थडे है सिगरेट पीते हैं, या आज मेरी एनिवर्सरी है मैं पेरेंट्स को सिगरेट्स गिफ्ट करूंगा, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता है। इट्स जस्ट दैट यार चाहिए, अभी तलब मच रही है, यू नो खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आई नीड अ सिगरेट, एंड देन यू आर लाइक हाँ चलो अच्छा हुआ सिगरेट मिल गई। So that's something that really made me think about it, yeah. Very nice point. I think we missed out this point. ये मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, because I think I was also reading a book by Ellen Carr. When I quit smoking, मैंने सुना कि How to Stop Smoking is a book by Ellen Carr. मैंने सुना कि काफी लोग help किए। तो उसमें एक बहुत important चीज लिखी थी, उसमें लिखा था कि जब आप क्विट करेंगे तो हो सकता है आपको नाइटमेयर्स आए रात को स्मोकिंग को लेके, और मेरे साथ हुआ है। जब मैंने क्विट किया तो मुझे रात को सपने आते थे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, और मैं डर के एकदम उठ जाता था कि यार मैं क्यों पी रहा हूँ, ओनली टू रियलाइज की। और उसमें एक और चीज लिखी थी जो आपने एकदम राइटली पॉइंट आउट किया कि इट इज द ओनली थिंग जो अपने विड्रॉल हटाता है, और वो और कुछ भी नहीं करती है सिगरेट। और कुछ वेरी नाइस पॉइंट। प्रणव आप क्या कहेंगे? आई मीन हाउ डू यू फील? आई मीन आपके आसपास आपकी फैमिली, आई थिंक आपने एक बताया कि जब आप सीए के पहले ही, आप सीए बनने के पहले आप यू गॉट मैरिड, उसके बाद आई थिंक आई एम श्योर कि आपने मैरिज के बाद छोड़ा है सिगरेट, इफ आई एम गेटिंग द टाइमलाइन राइट, पहले ही छोड़ा है। ओके हाँ, नहीं मैरिज के बाद छोड़ा, तो आई एम श्योर योर वाइफ वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, योर फोक्स वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो क्या आपके घर में क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? सबसे पहली बात तो मुझे ये कहना है, देखिए हम लोग अगर सिगरेट पी रहे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं आपके साथ में रह रहा हूँ, डे एंड नाइट आपके साथ में रह रहा हूँ, और मेरे बदन से बदबू आ रही है, मेरे मुंह से बांस आ रही है, यानी यू कैन रियलाइज जो सिगरेट पीने के बाद में जो अंदर से बांस आती है मुंह के अंदर से, कितनी गंदी बांस आती थी। एंड दैट दे वर बेयरिंग यार, यानी अपनी फैमिली जो है वो सहन कर रही थी, इतने साल सहन किया है। और उसके बाद में जब हम लोगों ने उसको क्विट करने के बाद में जो धीरे धीरे अपने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए वो तो हैप्पी पॉइंट था कि यार ये बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बात तो नहीं आएगी, बाद में बाकी सोचेंगे इसका सबसे बड़ी बात। लेकिन जो बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं, जो मूड जो है जैसे इरिटेटिंग, ये वो अपने धुन में रहना, ये सारी चीजें छूटने के बाद में जो फैमिली को जो मजा आ रहा है, अपने साथ में रह रहे हैं, अपने साथ में डिस्कस कर पा रहे हो, तो दैट इज द मेन पॉइंट जो हम लोग यानी जो अचीवमेंट है हमारा, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो पा रहे, नहीं तो फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, है ना। सिगरेट जो है पीना, तो हर बार सिगरेट पीने के लिए वो पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ करके बहाना निकाल के बाहर जाते थे। यानी अपने फैमिली में क्या हो रहा हम लोग देखे क्या? कभी नहीं देखे थे उस वक्त में, या फिर बहुत कम देखे। यानी अगर 10 चीजें होंगी तो उसमें से एक भी चीज अगर कॉन्सेंट्रेटेडली देखें, कॉन्सेंट्रेटेडली मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेडली अगर हम लोगों ने देखे होंगे ना, तो नसीब है अपना और वो फैमिली का भी। लेकिन आज के तारीख में ऐसा है कि वी आर फोकस ऑन अवर फैमिली, वो फालतू चीजों में हमारा ध्यान कम है, और हम अपनी फैमिली पे, अपने काम पे, अपने ड्रीम्स पे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं। तो दैट इज द मेन थिंग व्हिच वी हैव अचीव्ड, और हमारी फैमिली उसी वजह से बहुत ज्यादा खुशी है। ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली में पता नहीं था, सब लोगों को पता था, लेकिन वो पता है नहीं है, दैट डजंट मैटर। उसकी वजह से तकलीफ कितनी है वो वही जानते हैं, बता सकते थे।
नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आई थिंक फैमिली हैड सफर्ड अ लॉट। मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ, मुझे बाद में काफी रियलाइज हुआ। बड़ा एक फन क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एंड वील क्लोज दिस डिस्कशन। आई रिमेंबर वंस वी वर अ पर्टिकुलर ईयर, इट वाज दिवाली, एंड मेरे घर पे जो है दिए जल रहे थे और किसी को माचिस नहीं मिल रही थी। इंस्टिंक्टिवली मेरे जेब में हाथ गया और लाइटर बाहर आ गया, एंड माय होल फैमिली वाज वाचिंग इट मी लाइक दिस कि अरे क्या कर रहा है ये। तो कुछ ना कुछ एम्बैरसिंग चीजें हम सबके साथ में हुई है। तो आप क्या बताएं कि सीजन आपको कुछ याद आता है, कोई एम्बैरसिंग चीज आपके साथ हुई है ऐसी सिगरेट स्मोकिंग को लेके? हाँ, ये जो आपके साथ हुआ, ये तो एग्जैक्टली हुआ है मेरे साथ। कि कुछ जलाना है फुलझड़ी या कुछ। और वो एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, बीच में मैं बर्लिन घूमने गया था जर्मनी में, एंड आई रियली फेल्ट लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट, क्योंकि वहां पे हर कोई स्मोक करता है। मैंने पैक भी खरीद लिया, पैसे भी दे दिए। वो पैक पी के मैं वापस अपने हॉस्टल आया, मैंने रियलाइज किया नहीं यार, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। तो मैं बारटेंडर के पास गया और मैंने उसको बोला कि ये ले, इज अ पैक ऑफ सिगरेट्स। बारटेंडर सेड कि व्हाई आर यू गिविंग इट टू मी। मैंने कहा कि यार अब क्या बताऊं, मैंने गलती से खरीद ली, मेरा मन नहीं है स्मोक करने का। तो इफ एनी वन ऑफ यू स्मोक्स प्लीज कीप इट, नहीं तो देख ले जो करना है इसका, इट्स ऑल योर्स। तो उसने कहा कि यू आर जस्ट गिविंग मी अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स फॉर फ्री, एंड आई सेड या, बिकॉज आई डोंट वांट इट, एंड रोड पे कुछ फेंकूंगा नहीं मैं अभी, दुकानदार वापस लेगा नहीं, यू कीप इट। So he's like, wow, man, I've never seen anyone like you. And he took the cigarettes and he poured me a drink, saying, you know what, have this from my side. A very unique person. So I still remember that. काफी अच्छी प्रणव, आप चीज थी। बताइए आपके साथ, यू रिमेम्बर एनी सच इंसिडेंट्स की कुछ एकदम बहुत ही एम्बैरसिंग हुआ आपके साथ में? एम्बैरसिंग बोलेंगे उसको, फनी मोमेंट ही था वो एक्चुअली। कि क्या होता था, जब भी कोई चीज जलानी है, जैसे दिया जलाना है, कितने भी क्या होता है तूफान आ जाए, तो सिगरेट जलाने वाला जो है उसकी सिगरेट we can light anything at any moment और किसी सिचुएशन में। तो बोलते थे प्रणव को बताओ, वो दिया बराबर जलता था। जो आदत है वो गई नहीं है। आई थिंक आई कैन एसोसिएट एक वो आदत नहीं जाती है। पर्टिकुलर स्टाइल है आपका माचिस जलाने का, लाइटर जलाने का। Yes. आई कैन कभी एसोसिएट। तूफान आ जाए, कभी बुझता नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। Thank you so much Pranav, Srijan, thank you so much for talking to us here. I hope कि Thank you so much. जो हमारे बीच में smokers है who are trying to quit, or people who have also quit as well, they get motivation from this, they get inspired from this. Once again, salute to all you people, yeah, including me. हम लोग successful रहे इस सब चीजों में. The only person I think unhappy with all this development of us quitting is the, as you rightly pointed out, the Pantela walas, जो जिनका हम लोगों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। So I think all in all, I think it's a great thing that you both have quit smoking, yeah. And I hope that आप प्रणव भाई बोलिए। दादा कैसा है, वो पांठेले वाले का बिजनेस है, लेकिन आप अगर उसको भी पूछो ना, तो वो भी कहेगा कि भैया अगर सिगरेट नहीं पियो तो अच्छा। यानी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक ये रहा है, जब भी मैं पांठेले पे जाता हूँ ना, यानी अभी भी बोलो या फिर पहले भी जाता था, तो सिगरेट तो निकाल के रखता था, लेकिन वो बोलता प्रणव भाई बहुत हो रही ना, अभी थोड़ा कम करते जाओ। आप प्रणव आप बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस यही है। पर्टिकुलर पर्सन whom I know, बहुत मेरे से बहुत बड़े है, सीनियर है, तो आई थिंक ही इज अराउंड 60 और समथिंग लाइक दैट। उनके यहाँ पे मैंने 10 साल सिगरेट पी है, तो जब उनको पता चला अभी थोड़े दिन पहले कि मैंने छोड़ दी, ही वाज सो हैप्पी and it was really touching जो उन्होंने बताया मुझे। तो I think that's really great. So Pranav, thank you so much. Srijan, thank you so much for talking to us on India Fights Addiction, an initiative by Nation Next Foundation. I hope कि जो आपने हमें बताया, जो हम लोगों ने अभी आज शेयर किया, it helps people to quit as well, और जो लोग quit कर चुके हैं उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो लगे रहे इसी बात पे। Thank you so much guys. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.